What does redemption of debenture mean? Redemption of debenture. Redemption means repayment. Debentures are loan. Debentures are long-term borrowing, non-current liabilities. So when company issues debentures, after a certain period of time, it has to return the money to its debenture holders. It has to return the money back to its debenture holders. भाई लोन लिया है कंपनी ने, and it has to be returned back. So when that amount is returned, the principal amount, 5 साल के लिए अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं, मींस कंपनी ने 5 साल के लिए डिबेंचर्स पे लोन लिया है. After 5 years, company need to pay the amount back to the debenture holders. The principal amount 5 lakh suppose, और हर साल कंपनी क्या देती रहेगी? इंटरेस्ट मैंडेटरी, which is charged against profit. Even if the firm incurs loss, interest on debentures is paid. But after 5 years, when the period will be over, then the company will have to return the principal amount to its debenture holders, and that is known as redemption of debenture. ये redemption of debenture chapter में नहीं पहुंचे अभी हम. It is in the issue of debentures chapter itself, a topic that redemption of debentures के टाइम पे क्या सिचुएशन होगी. The company has to pass the journal entries of issue of debentures, keeping in mind the terms and conditions of redemption of debenture. Issue of debentures के टाइम पे ही at the time of redemption what would be the situation, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जर्नल एंट्री करनी है. So it is clear to you already that debentures can be issued at par, at premium and discount. Debentures can be issued at par, at premium and at discount. But very importantly, my dear students, debentures can be issued at par, premium or discount. But redemption of debenture के time पे redemption can be done only either at par or at premium. Redemption of debenture can only be either at par or at premium. Can anybody tell me why? Why it is not possible to redeem the debentures at discount? Mansa, any idea? Kashish? Krish? Dhruv? Why debentures cannot be redeemed at discount? Archie? Sir, is it a loss? Something like that. Amit? The discount is a that. Debentures cannot be redeemed at discount. Any idea? May I? Yes.
Sir, because debentures are the loan of the firm, and when it will be repaid, then full amount with the interest will be paid. Interest is paid every year. Interest is paid every year, and at last, after the loan term is over, company will return the principal amount. The principal amount will be returned to the debenture holders. तो भाई जिससे आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए, हरविंदर सिंह से हमने लोन लिया है, तो 5 साल बाद इंटरेस्ट तो हम हर साल देंगे ही। 5 साल बाद जब पैसे वापस करेंगे तो 10 लाख तो करेंगे ही ना मिनिमम पार पे, या फिर 10 लाख से ज्यादा करेंगे। हरविंदर को हमने क्या रखा है कि भाई फाइनल ईयर में तुम्हें जो है 50,000 रुपए फालतू देंगे वापस, इंटरेस्ट तो देंगे ही हर साल। तो हरविंदर बड़े खुशी खुशी हमें लोन देने को तैयार हो सकते हैं। सो कंपनी में रिटर्न और रीपे द डिबेंचर अमाउंट आइदर एट पार और एट प्रीमियम, बट नेवर एट डिस्काउंट। कि हरविंदर सिंह से कहे बाद में तुम्हें 10 लाख की जगह जो है 8 लाख मिलेंगे। नेवर ही विल एग्री, nobody will agree, no foolish person, nobody is so foolish कि जितने पैसे दिए हैं उससे भी कम तुम मुझे वापस करोगे। वाह भाई वाह, तुम चाचा लगते हो ना हमारे। nobody will agree on this, therefore अगर आप ध्यान से देखें, डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, बट इट कैन ओनली बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम। तो आप देखिए पार में जो डिबेंचर इशू हुआ है वो पार में और प्रीमियम में क्या हो सकता है, रिडीम। पार में और प्रीमियम में रिडीम हो सकता है। जो डिबेंचर प्रीमियम में इशू हुआ है वो भी पार में और प्रीमियम में रिडीम हो सकता है। जो डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है वो भी पार और प्रीमियम में रिडीम हो सकता है। So altogether there are 6 cases. Altogether there are 6 cases. Altogether there are 6. वो पढ़ते ना स्पोर्ट्स उसमें, फिजिकल एजुकेशन में, ये फिक्सचर बनाते ना ऐसे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इसको इससे कैसे करेंगे। जो भी डिबेंचर पार में इशू हुआ है वो बाद में प्रीमियम में या फिर पार में रिडीम हो सकता है। अ डिबेंचर विच इज इशूड एट प्रीमियम कैन आल्सो बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम। डिबेंचर विच इज इशूड एट डिस्काउंट कैन आल्सो बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम। सो देयर आर 6 केसेस। हर केस में बेटा 2 जर्नल एंट्री करनी है आपने। हर केस में 2 जर्नल एंट्री करनी है आपको। आपकी बुक में आप देखिए 2 जर्नल एंट्री दी होंगी। On the left hand side entries for issue, on the right hand side entries for redemption. On the left hand side entries for issue, and on the right hand side entries for redemption of debenture. You don't have to look at redemption entries, only look on the left hand side entries. Entries for issue, entries for issue of debenture considering the terms and condition of redemption. Considering the terms and condition of redemption, accrual basis. Accrual basis is to be followed. What would be the situation at the time of redemption, उसको हम issue के टाइम पे ही नोट करेंगे। तो 2 जर्नल एंट्री होगी इसमें। How many cases? 6 cases. There are 6 cases and हम इसको जो है देयर आर 6 केसेस। अब इन 6 केसेस की आपको जनरल एंट्री हम एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स कैन बी आस्क्ड ऑफ दिस टाइप। प्लीज नोट डाउन, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। सिर्फ 2 जनरल एंट्री करनी होगी। कोई एक केस पूछेंगे आपसे
या 2 केस पूछ सकते हैं 1.5 मार्क्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मनसा, नोट डाउन, जर्नल एंट्री क्या होगी? Everybody will note down the 6 journal entries. Out of these 6, any 2 can be asked in the exam. Any 2 may be the possibilities of entry number 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Most importantly, the cases. आ जाइए सबसे पहले केस। When debentures are issued at par and redeemable at par. Case number 1. Case number 1, look here. Debenture is issued at par and also redeemable at par. कोई डिबेंचर इशू हुआ था पार में, जो हम बता रहे थे हरविंदर सिंह को कि 10 लाख के डिबेंचर अगर हम आपसे ले रहे हैं, बाद में 10 लाख रुपए आपको वापस करेंगे। इशू भी हमने पार में किए और बाद में रिडीम भी क्या करेंगे? पार में करेंगे, और इंटरेस्ट पे करते रहेंगे हर साल, चाहे वो 6% है, 7% है, 8% है, वट प्री डिटरमाइंड जो होता है उसमें। ओके, तो इशू जब डिवेंचर्स होंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. We are assuming that whole amount is received along with application. We are assuming that whole amount डिवेंचर का, अगर वो 10 रुपीज पर डिवेंचर था, the whole amount is received at the time of application, and at the time of application only the debentures are allotted debenture holders. Okay, तो जितने भी डिवेंचर्स इशू होंगे, यहां पर इन्होंने एग्जांपल दिया है 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, ये दे आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, आपने 100 रुपीज में इशू किया, बाद में उसे 100 रुपीज में ही रिडीम करेंगे, राइट? तो आपको 2 जनरल एंट्री करनी है। नंबर 1, रिसिप्ट ऑफ द मनी, द रिसिप्ट ऑफ मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और सेकंड वाली क्या होती है? सेकंड जनरल एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर आपने इशू ऑफ डिवेंचर किया है या इशू ऑफ शेयर्स किया है, अमित कुमार, फर्स्ट 2 जनरल एंट्री, एक रिसिप्ट की और एक ट्रांसफर की, वही 2 जनरल एंट्री करनी है आपको, ये 3 मार्क्स में। तो सबसे आसान केस है ये पहला केस। The first case is the most simple and the easiest one. Is it clear? What is the case? Debentures are issued at par and redeemable at premium. Redeemable at premium means repayable at premium. Sorry, at par only. So simple journal entry होगी इसकी, डिवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और बाद में आपने उसे ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। When debentures are issued at par and redeemable at premium. हम आपको सेकंड करा रहे हैं, आपकी बुक में 4थे नंबर पे होगी, क्योंकि उन्होंने पहले पार वाली ली है, उन्होंने पहले पार वाली ली है सारी, उसके बाद जो है प्रीमियम वाली ली है। हम क्या कर रहे हैं, हर केस के साथ जो 2 है, पार के साथ 2 केस है, पार एंड प्रीमियम,
प्रीमियम के साथ दो केस है, प्रीमियम, पार एंड प्रीमियम। डिस्काउंट के साथ दो केस है, पार एंड प्रीमियम। उन्होंने क्या किया है, पहले पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीनों के साथ किसको लिया है, रिडीमेबल एट पार। फिर उन्होंने यहां से लिया है, चलिए आप भी ऐसे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, मतलब पहले तीन केस में डिबेंचर रिडीम होंगे पार पे, पहले तीनों केसों में डिबेंचर रिडीम होंगे पार पे। इशू होंगे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो दूसरा केस क्या हुआ, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो जनरल एंट्री नोट करिए, पहली तो हो गई, एक शेयर सॉरी एक डिबेंचर है 100 रुपीज का, जिसे आपने इशू किया है 95 में, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है, इशू किया है 95 में और बाद में रिडीम करेंगे उसे 100 में, बाद में रिडीम करेंगे 100 में। तो जनरल एंट्री नोट कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट कितना था 5, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अमित डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है हमारे लिए, लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज लॉस, देयरफॉर इट इज डेबिटेड। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज। Amit Tenani, point to be noted that always टू डिवेंचर जो हम क्रेडिट कर रहे हैं वहां पर फेस वैल्यू आनी चाहिए डिवेंचर की। टू डिवेंचर अकाउंट में ऑलवेज 100 रुपीज आएगा, अगर एक शेयर एक डिवेंचर है, 10 होंगे तो 1000 आएगा। तो आप पहले से नोट रखिए, सेकंड वाली एंट्री में टू डिवेंचर में ऑलवेज यू विल राइट 100 रुपीज। अब डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 95 था, तो 5 रुपीज और बचे। 5 रुपीज क्या है, वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3, when debentures are issued at premium, note down Harvinder Singh, when debentures are issued at premium and redeemable at par, when debentures are issued at premium and redeemable at par, yes, we are back. So issued at premium, जब प्रीमियम में डिवेंचर इशू होगा तो फर्म के लिए इट इज अ प्रॉफिट और लॉस। डिवेंचर जब प्रीमियम में इशू होगा फॉर फर्म इट इज अ प्रॉफिट। डिवेंचर प्रीमियम में रिडीम होगा देन इट इज अ लॉस फॉर द फर्म, देन इट इज अ लॉस फॉर द फर्म। ये ध्रुव सिंगल का म्यूट करो। यस, तो redemption on premium is a loss for the firm,
but issue of debenture at premium is profit, capital gain it is. तो एंट्री करिए. अब आपने 100 रुपए का डिवेंचर 105 रुपए में इशू किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 रुपीज. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 रुपीज. अब जैसे कि मैंने बताया, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम इज अ प्रॉफिट, कैपिटल गेन. तो दूसरी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शुड बी क्रेडिटेड, जैसा कि आप कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स में आपने देखा एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स में देखा. वही दो फर्स्ट जनरल एंट्री करनी है आपने. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी होल अमाउंट टुगेदर एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल और डिवेंचर अकाउंट, जैसे कि आप करते हैं. फर्स्ट टू जनरल एंट्रीज का ही सारा खेल है और 3 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक. अभी जब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे आप कहेंगे यस आई कैन डू इट विद लिटिल बिट ऑफ ट्रिक, लिटिल बिट ऑफ ट्रिक. फर्स्ट एंट्री सभी में सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. सेकंड एंट्री में भी नोट करेंगे ये चीज कॉमन है, डिवेंचर एप्लीकेशन and allotment account debit to जो 6 के 6 केस है उसमें सेकंड एंट्री में भी ये चीज कॉमन है सब एंट्रीज में. सिर्फ आपका डिस्काउंट, प्रीमियम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, ये सब चीजें आपके ऐड होंगी. ओके, तो नोट करिए सेकंड और थर्ड वाली एंट्री. ओके ये आपकी कॉमन है. अब आपका जो था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो तो पहली एंट्री आपने कर ली 105 रुपीज. अब आपने यहां पर लिख दिया 105. एक चीज मैंने आपको बताई कॉमन अभी, टू डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, इसका मतलब यहां पर आ गया 100. तो अब क्या बचा यहां पर, क्लियर हो गया. सेकेंड एंट्री. अब आ जाइए केस नंबर 4, 5, 6. ये है इंपॉर्टेंट केसेस. केस नंबर 4, 5, 6, उसमें भी 5 and 6 वेरी इंपॉर्टेंट. केस नंबर 4, when debentures are issued at par and redeemable at premium. हरविंदर सिंह, redeemable at premium. Namanpreet, listening? रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं, कंपनी के लिए लॉस, कंपनी के लिए लॉस, डिवेंचर होल्डर के लिए फायदा. रिडीमेबल एट प्रीमियम. सो व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो पहले तो पहली जनरल एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट
to debenture application and allotment 100 rupees because debenture was issued at par. अब debentures will be redeemed at premium. Debenture application and allotment account debit 100, debenture वाले में 100, right? Premium on redemption 5, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लॉस फॉर द फर्म. Premium on redemption is a loss for the firm, so we will also write it. Very important entry. This premium on redemption is a loss for the firm, so we have to write it as a loss also. Is it clear to everyone? The premium on redemption of debenture, it is a liability of the firm. It is a liability of the firm, beta. Firm has to pay it along with the redemption. That is why credited. And because it is also a capital loss for the firm, so it should be debited also. Next case, when debentures are issued at discount and redeemable at premium. Very important case. When debentures are issued at discount and redeemable at premium. Archie, if you notice, it is a double loss for the firm. Double loss for the firm. एक तो पहली बार डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट में और बाद में रिडीम भी कर रहे हैं उसे प्रीमियम में. फर्स्ट, debentures are issued at discount is one loss, and after some time it is redeemed at premium is another type of loss. So you see, पहले आपने मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया 95 में, इसमें क्वेश्चन में कितने में किया है 98 में. A debenture of 100 rupees is issued at 98, 2 रुपए का लॉस हो गया. And redeemable at premium of 5 rupees, 5 रुपए का लॉस हो गया. टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस 7 rupees. Loss on issue of debenture 2 plus 5. डिस्काउंट वाला भी और प्रीमियम वाला भी. You will add here and show it together. Loss, total loss 2 rupees of discount and 5 rupees of premium on redemption. 5 rupees of premium on redemption. 7 rupees. इशू कितने में किया था 98. अमित, डिवेंचर वाले में कितने पैसे आएंगे 100 रुपए.
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज। हो गया बैलेंस, देखिए हो गया बैलेंस। So not very difficult, but tricky. And with the explanation, because simultaneously I am giving you the explanation. अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, you will be able to follow. Proof, is it clear? And the last case, issued at premium and redeemable at premium. Issued at premium and redeemable at premium. Issued at premium and redeemable at premium, यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्री है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंट्री यही है। इससे ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स एंट्री कोई नहीं है इन 6 केसेस में। कॉम्प्लेक्स अब आपको नहीं लगेगी, बिकॉज यू आर वेरी अटेंटिवली लिसनिंग टू इट, यू विल फाइंड इट इजी। अब देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, शेयर इशू किए, सॉरी डिवेंचर इशू किया आपका प्रीमियम में, 100 रुपए का डिवेंचर 106 रुपए में इशू किया है। 100 रुपए का डिवेंचर 106 रुपए में इशू किया है, तो 6 रुपए तो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आप पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106 रुपीज। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106। बेटा स्टेप बाय स्टेप करिए। डिवेंचर अकाउंट में आपको बताया कितना आएगा, 100 रुपीज। इशू कितने में हुआ था, 6 रुपए प्रीमियम में, तो यहां पर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना इसमें, 10 रुपीज। 6 रुपए तो इशू के टाइम पे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 6, ये 6 है, और रिडम्पशन वाला कितना है, 10 रुपीज। तो वो हमारे लिए लॉस है, वो हमारे लिए क्या है, लॉस। वो आ जाएगा यहां पर, और आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बिकॉज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज आवर liability which we have to pay. The firm has to pay this premium on redemption. That is why it is credited 10 rupees, and this 10 rupees is also shown here. It is debited as well as credited. It is debited as well as credited. It is a loss also, it is a liability also. And 6 रुपीज इशू के टाइम पे जो प्रीमियम है 6 रुपीज, दैट इज आवर कैपिटल गेन, सो दैट इज क्रेडिटेड हेयर ऑल्सो। यहां पर जो 6 रुपीज है वो ये है। सो आई होप आपके लिए आज की क्लास बड़ी बढ़िया रही होगी। 3 मार्क्स का ये टॉपिक या कॉन्सेप्ट जिन्होंने आज अटेंड नहीं किया है, दे हैव लॉस्ट इट, बिकॉज इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, जिसमें ये समझना कि प्रीमियम कभी लॉस हो जा रहा है, प्रीमियम कभी प्रॉफिट हो जा रहा है। हाउ इज इट, वाई इज इट, वाई इज इट डेबिटेड, वाई इट इज क्रेडिटेड। जब भी प्रीमियम रिडम्पशन वाला होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसको यहां लॉस में शो करना जरूर, और वही अमाउंट यहां पर शो करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलग अलग चीजें हैं बेटा। प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू इज अ कैपिटल गेन,
premium at the time of redemption is a liability. The firm has to pay it. Therefore, be very, very wise enough and see the question. अब आप इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आज जो है सॉल्व जरूर करिए. If you will solve all these questions today only, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपके क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड है. कोई सा भी इसमें से आ सकता है आपके एग्जाम में. एक ही आएगा. इन 6 केसेस में से एग्जाम में मैक्सिमम 2 केसेस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू. 2 केसेस. और आपको 2 जनरल एंट्री करनी होगी उसमें. इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड प्लीज. ओके, वेरी गुड. पल्लवी क्लियर? Yes, Chris has raised hand. Okay, everybody clear. I think you are honest and you have understood, you have done it, and with the examples, illustrations, you will be able to do this topic very, very clearly. Very good luck for your 3 marks. Congratulations, you have got 3 marks for your board exams. If you practice them today only, पक्के हो जाएंगे आपके, because it is very, very important topic. So take care, complete your work, and see you tomorrow. Thank you. God bless all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.